good afternoon, hello, and namaste from India in a very special session with Dr. Dhamal Kishle. He's back here again, and this time we are going to do it in Hindi on public demand. So let me just give a brief introduction of Kishle. Although he needs no introduction, he's quite popular on YouTube and Instagram and Twitter now. So Dr. Kishle did his MBBS and then completed 3 years of training course in general medicine as DNB resident at Tata Motors Hospital, Jamshedpur. He is popularly known as the hypercarnivore metabolic doctor. He has been successfully managing his patients with metabolic syndromes using the low carb protocol. Dr. Kishle uses fasting, low carb, hypercarnivore protocols for his patients as a mainstay treatment. He has a very dynamic approach to nutrition, and people who are familiar with him on Instagram, on YouTube, they are familiar with the kind of myth busting that he does. So we hope to do that today as well. With me is Anup Singh, the founder of D Life, India's biggest, oldest low carb platform, the only award winning platform, with D Life Diploma course, which is the biggest in the world with 60 CPD hours credit to it. So let's begin. The first question, Kishle, welcome. Thank you. Thank you so much, Ira. And thank you so much So, for invite. So I would like to give a special thanks to Anup and Shashikant sir. It's an honor and privilege to be a part of a team. Thank you. hmm, Welcome. you are team, yeah, you are team. So I'll combine the first two questions because they are related, and then probably Anup can take over from there. So Kishle, हिंदी में मैं ज्यादा बात करूंगी, sometimes in English also. Sure. How did you come into low carb? आपका लो कार्ब का जर्नी कैसे शुरू हुआ? क्योंकि आप एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, तो आपने ये कन्वेंशनल मेडिकल प्रोटोकॉल यूज करने के बजाय लो कार्ब क्यों यूज करना शुरू किया अपने पेशेंट पे? क्या आपको उस पर भरोसा नहीं था? एक्चुअली ये था, ऐसा कुछ था, क्योंकि कुछ स्पेशल स्टोरी तो नहीं है मेरे साथ. यूजुअली लोग आप जनरली वही लोग करते हैं जिनके साथ कुछ सीरियस क्रॉनिक डिजीज होता है, देन दे शिफ्ट टू लो कार्ब. बट अदरवाइज मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था. जस्ट बिकॉज आई वॉज सो मच इन टू बॉडी बिल्डिंग सिंस माई अर्ली टीन्स. तो जब मैं 17 का था देन बॉडी बिल्डिंग मैंने स्टार्ट किया था, और अब ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए बॉडी बिल्डिंग को. सो तब मुझे ऑल ऑफ अ सडन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके रियलाइज हुआ कि मैं एक टिपिकल ओवरवेट मेडिकल डॉक्टर हो चुका हूँ. सो आई शुड रियली डू समथिंग अबाउट दिस. बट दैट और आई थिंक इज फैट शेमिंग. या बट if you are aware about, if self awareness होनी चाहिए, if you are aware about what actually health is, then definitely you will do something about it. That's my opinion. But do you think one should trust a fat doctor? Is that what motivated you to, kind of? Because you know what, when you talk about health on social media, especially, Dr. Kishle, you know that, and you've been part of, our discussions. तो जब भी हम बात करते हैं लो कार्ब प्रोटोकॉल की या गेटिंग फिटर हेल्दियर, तो क्या होता है कि जब डॉक्टर्स आते हैं एंड वी टेल देम द सेम थिंग विदाउट एनी बायस, तो टेक इट वेरी पर्सनली, दे से इट इज फैट शेमिंग, बट यू आर सेइंग दैट बीइंग अ डॉक्टर you were overweight and that kind of shook you. Yeah. So actually I was 92 at that time. So Hmm. now I am 82, and it's been there, means like I've been able to maintain this body weight for last 7 or 8 years around. So मेरे हिसाब से बॉडी शेमिंग, फैट शेमिंग होनी नहीं चाहिए. आपके अंदर खुद एक वो फीलिंग आनी चाहिए कि वेदर यू आर हेल्दी और नॉट. बॉडी कॉम्पोजिशन को देखना चाहिए. और जहाँ तक बात है इमरजेंसी, एक्यूट इमरजेंसीज की, देन यू कैन रिलाई अपॉन दोज काइंड ऑफ डॉक्टर, मीन्स अगर ओबीज हैं भी, बिकॉज वहाँ पे काम उनका वो है इमरजेंसी Hmm. सिचुएशन को डील करना. बट इट व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन एंड गिविंग सम डाइटरी एडवाइस regarding chronic metabolic disease, then definitely you should not trust those doctors, frankly. Hmm. Hmm. So Anup, would you like to take the next question? Yeah, Dr. Kishle, if any of my questions are controversial, you can skip that. पहले No, ही no, जो I won't skip, definitely. I will now answer that. let's begin with a simpler one. ये complex carb, simplex carb, moderate carb, ये complex simplex जहाँ तक हमें समझ है, अल्टीमेटली बॉडी में अगर आप कॉम्प्लेक्स से, सिंप्लेक्स से या प्योर ग्लूकोज से 100 ग्राम ग्लूकोज जा रहा है, तो उसके लिए एक एक्स अमाउंट इंसुलिन लगेगी. Only thing that all this complex, simplex, and dimplex will affect is PPGE, that is excursion.
राइट। but in 24 hours the insulin demand will be same. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स का इतना मार्केट क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कॉम्प्लेक्स की मार्केटिंग शायद इसलिए हो रही है क्योंकि कार्ब्स को तो आप हटा नहीं सकते डाइट से, तो आप समहाउ उसको कहीं ना कहीं तो आप एक इमेज दोगे, एक पिक्चर दोगे कि कार्ब्स एक्चुअली एसेंशियल है, तो आप किस तरह से कार्ब्स ले सकते हो। ये वाला एक बेसिकली एक फाउंडेशन लोग डेवलप कर चुके हैं अब। और आप अगर फाइबर ऐड कर दिए कार्ब्स में तो वो कार्ब्स कार्ब्स नहीं रहा, वो एक हेल्दी कार्ब्स हो गया सो कॉल्ड। और वही प्रॉब्लम है क्योंकि आप और क्योंकि एडिक्शन इतना ज्यादा है कार्ब्स के लिए लोगों के अंदर, और सभी के पास होता है, हमारे पास भी है, बट हमें पता है कि हमें कितना उसको लेना होता है, हमें पता है। तो वो एक रिलेशनशिप हमें एस्टेब्लिश करना होता है, आपको किसके साथ कितना करना है आपको ये समझ में आना चाहिए, वो इंसान ही क्यों ना हो, आपको समझ में आना चाहिए कि हमें किसके साथ कितना रहना चाहिए और कितना नहीं रहना चाहिए। तो फूड पे भी आते हैं तो कार्ब्स के साथ भी वही सिचुएशन है। तो मार्केटिंग क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेलेबल है, एडिक्टिव है, और लोग उसको खाएंगे ही, तो क्यों ना उसको हेल्दी एक पिक्चर एक पेंट कर देते हैं कि चलो ये हेल्दी हो गया, अब आप खा सकते हो। ये सिंपल स्ट्रैटेजी, और मार्जिन ऑफ बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है कार्ब्स पे। जो भी प्रोडक्ट हमारे पास हैं इंडस्ट्री वाइज जो भी बना रहे हैं, तो उसमें मार्जिन ऑफ बेनिफिट बहुत है, तो डेफिनेटली वो लोग तो प्रमोट करेंगे ही। आपने सही इसलिए कहा, जब एक कोक में प्लीज कैरी फाइबर ऑन। डाल दिया तो वो हेल्दी कोक हो गया आजकल। और पर आपने जैसे बोला ना कि कार्ब्स एक समझ बन चुकी है कि जरूरी है, तो राइट। एक्सटेंशन इसका ये है, कई एक्सपर्ट्स, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स को इंस्टाग्राम पे, ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो आजकल ये लेक्चर देते हैं सबको कि ब्रेन बिना कार्ब्स के चलेगा नहीं। इसलिए आपको जो है कम से कम 200-300 ग्राम कार्ब्स खाना चाहिए। हमारा ब्रेन तो बैठ जाना चाहिए था फिर अभी तक, तो वो बैठा क्यों नहीं, ये आप बताओ। ऐसा जो बोल रहे हैं एक्चुअली एक्चुअली उन्हीं का ब्रेन बैठा हुआ है, दैट्स व्हाई दे आर स्पीकिंग, दे आर टेलिंग लाइक दिस। मेरा ये मानना है क्योंकि रिसेंटली अभी ईरा ने जैसे एक ट्विटर पे एक विद्युत जामवाल का एक वीडियो शेयर किया था, और मैंने भी उस पर क्रिटिक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ इंस्टाग्राम पे 4 पार्ट्स में। तो वो बंदा कैसे बोल रहा है उसमें समझ में आता है एक्चुअली कि कितना ब्रेन फॉग्ड है वो एक्चुअली। और बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में कार्ब्स खाते हैं ये जितने भी एथलीट है ना, थोड़ा भी ये लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, खैर उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, हमें पता है, वो बॉडी देख कर लगता है, बट स्टिल कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो मसल का डिमांड है, ब्रेन का डिमांड है, और ग्लाइकोजन वाला वो एक आता है कॉन्सेप्ट कि ग्लाइकोजन को रिप्लीट करना है हमें, बिकॉज वी आर डिप्लीटिंग और ग्लाइकोजन रिजर्व। तो उस चक्कर में क्या होता है कि कहीं ओवर डू कर लेते हैं, शायद हमें उतना चाहिए भी नहीं, अगर आपने डिप्लीट किया भी तो आपको उस तरह से ग्लूकोज का इंटेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्लाइकोजन डिप्लीट उतना नहीं हो रहा, 400-500 ग्राम पूरे मसल का ग्लाइकोजन आपका डिप्लीट नहीं होता, आप कितना भी इंटेंस एक्टिविटी कर लो। तो आप खा लेते हो 500 ग्राम और डिप्लीट आपका 100 ग्राम हुआ है, क्योंकि मसल का ग्लाइकोजन यूजुअली स्पेयर्ड होता है, लिवर ग्लाइकोजन डिप्लीट होता है इवन आफ्टर एक्टिविटी, योर मसल ग्लाइकोजन काइंड ऑफ, इवन फास्टिंग में, प्रोलॉन्ग फास्टिंग में भी मसल ग्लाइकोजन आपका पड़ा हुआ रहता है, स्पेयर्ड होता है कंप्लीटली। तो यू आर नॉट डिप्लीटिंग एट दैट लेवल एक्चुअली, द वे यू आर पुटिंग इट इनटू योर सिस्टम। सो ये है बेसिकली, ये मिसकॉन्सेप्शन है, जो अच्छा लगता है हमारे इमोशन को वही हम काम करते हैं, जिसमें कठिनाई होती है, जिसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं वो काम करना अच्छा लगता है, और उसी के साथ हम जुड़े रहते हैं। यही रीजन है बेसिकली, और क्योंकि साइंस को समझना चाहते नहीं लोग, और इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि जब भी आप साइंटिफिक डिस्कशन पे आओगे ये लोग पर्सनल अटैक करने लगते हैं फिर, राइट। ये लोग डिस्कशन का पार्ट नहीं बनते कभी, ये लोग पर्सनल अटैक करने लगते हैं, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डॉक्टर किशले, एक क्वेश्चन। जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपसे ये क्यों नहीं पूछता है कि आप क्या खाते हैं? डॉक्टर आपसे सिम्टम्स पूछता है और पेपर पे लिखने लग जाते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन। व्हाई डू दे नेवर आस्क व्हाट आर यू ईटिंग? देखिए डॉक्टर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि वो डॉक्टर है ना, वो जिस तरह से ट्रेंड है, वो सबसे बड़ा इशू उसके साथ वही है, क्योंकि डॉक्टर को जिस तरह से ट्रेनिंग दी गई है, हम डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन की कहीं कोई चर्चा नहीं है, थोड़ा भी क्लू नहीं है डॉक्टर के पास न्यूट्रिशन के बारे में। तो उन्हें ऐसा लगता है जो है एवरीथिंग इज पिल, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट पिल्स और सर्जरीज, यही है। तो उसमें क्या होता है कि एक लिमिटेड एडिशन हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन का, मेरे हिसाब से जो भी, और वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो ऑलमोस्ट
सेम है अगर हम कंटेंट वाइज वॉल्यूम वाइज देखें, जो बचपन में हमें फूड पिरामिड पढ़ाया गया था उतना ही पढ़ाया जाता है एमबीबीएस में भी। वही विटामिन ए विटामिन बी किस में मिलता है बस हो गया। हम्म, और जो एक्चुअल जो अगर आप न्यूट्रिशन नहीं भी पढ़ रहे हो, अगर आप बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ते हो, तो मुझे ऐसा लगता है आप न्यूट्रिशन पार्ट पे थोड़ा फोकस करने लगोगे खुद पे खुद। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उस बायोकेमिस्ट्री को भी किसी प्रोफेसर ने अच्छे से पढ़ाते नहीं है। यूजुअली लोग क्या होता है कि हमारे एमबीबीएस डेज में भी लोग रटते हैं उस बायोकेमिस्ट्री के पूरे साइकिल को, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस हो, चाहे वो सिट्रिक एसिड साइकिल हो, इवन ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो, ग्लाइकोजेनेसिस हो, वो सारा कुछ हम रटते हैं और बस रट के भूल जाते हैं फर्स्ट ईयर पास होते ही। अब उसका सारा एप्लीकेशन एक्चुअली जब आप व्हेन मेडिकल प्रैक्टिस जब आप एक्चुअली करते हो मेडिसिन की प्रैक्टिस, देन एक्चुअली उसका है बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। बट क्योंकि आप तो भूल गए, अब आपने फाइनल ईयर में पढ़ा मेडिसिन, फर्स्ट ईयर के बायोकेमिस्ट्री को आप भूल गए, और फाइनल ईयर में जब आप मेडिसिन पढ़ते हो तो बायोकेमिस्ट्री की कोई चर्चा नहीं होती है फाइनल ईयर तक। और वो मेडिसिन का एक प्रोटोकॉल बन जाता है कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स क्या है, सेकंड लाइन ड्रग्स क्या है, तो दिमाग में बस ड्रग्स ही ड्रग्स होते हैं तो और कुछ लेकिन नहीं। तो जो मेडिसिन होती है, एक बार जब आप मेडिसिन पे आते हैं तो वी हैव नेवर सीन रेमिशन हैपनिंग रियली। तो shouldn't doctors be thinking that the first line of treatment, or shouldn't people be thinking that the first line of treatment should not be pills but something else? वो मैं बता रहा हूँ, उसकी ये जो थॉट प्रोसेस है ना डॉक्टर्स का, वो एक्चुअली बेसिकली डॉक्टर्स तो इनडॉक्ट्रिनेटेड है ना पूरी तरह से। अब दो क्लास ऑफ डिजीज होते हैं इन जनरल, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। अब क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में हम सब जानते हैं कि वहां पे हमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत है, और जब हम एंटीबायोटिक देते हैं तो एक पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट देते हैं और वहां पे हम इन्फेक्शियस डिजीज को क्योर कर पाते हैं। एक है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का कल्प्रिट लाइफस्टाइल या फिर डाइट नहीं होता, ऐसा हमें बताया गया, ये जेनेटिक्स होता है। बेसिकली ये जीन ड्रिवन है, इसलिए आप कुछ करते नहीं हो फिर। तो न्यूट्रिशन का क्या है, सब कुछ मॉडरेशन में खाओगे तो ठीक रहोगे, बाकी तो हम हैं ही पिल्स देने के लिए या सर्जरी करने के लिए। सिंपल है, हम्म। ज्यादा तो दिमाग नहीं इससे लगाना। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बस, देन आई थिंक आई विल हैंड इट ओवर टू अनु। तो अगर ये थॉट प्रोसेस है, तो ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आ रही है? आर यू सेइंग दैट द curriculum that you study as doctors is pharma driven? बेसिकली एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है कि हम जिस एरा से आए हैं ना, ट्रांजिशन हुए हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स टाइम पे क्या होता था कि उस समय इन्फेक्शियस डिजीज बहुत होते थे, लोग मलेरिया, डेंगू, ये सब, टाइफॉइड, कोलेरा और गैस्ट्रोएंटराइटिस जो भी है वायरल, ये सब होते थे बहुत, इवन ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज्यादा होता था ये सब। और डॉक्टर्स का जो एक डायग्नोस्टिक अप्रोच था वो एक इन्फेक्शियस डिजीज को लेकर के था। चाहे आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बात करते हो तो वहां पे डॉक्टर्स को हर कुछ देखना होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एब्डोमिनल ऑर्गन्स, सब कुछ ऑस्कल्टेट करते हैं, पैल्पेट करते हैं, है ना, वो सब एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बात होती है। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में सही था, उस डिजीज के लिए आपको वो करना पड़ता था। लेकिन अब प्रॉब्लम उसका है नहीं, अब तो एपिडेमिक आ गया हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, लाइफस्टाइल डिजीज का। तो अब क्या हो रहा है कि अब इसके अकॉर्डिंग हमारा करिकुलम रिवाइज नहीं हुआ, हम सेम चीज ही पढ़ रहे हैं। इन्फेक्शियस डिजीज हम आज भी पढ़ते हैं, वही ड्रग्स पढ़ते हैं, वो ठीक है, हालांकि वो बहुत ज्यादा अब होता नहीं है, प्रेवलेंट नहीं है इन्फेक्शियस डिजीज, बट स्टिल वी आर रीडिंग दोज थिंग्स। एंड व्हेन इट कम्स टू लाइफस्टाइल डिजीज, दे haven't talked about anything regarding nutrition and exercise or anything like fasting also. So वो ड्रग्स हैं फिर उसके लिए। तो पूरी तरह से ये कॉन्स्पिरेसी है। तो बेसिकली कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के हम लोग एक पार्ट हैं, माइनॉरिटी हैं, और मेजॉरिटी में कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, और हम लोग फैक्टिस्ट हैं, फंसे हुए हैं, हमारे फैक्ट्स को कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। Anup, would you like to हाँ, take the next question, ये please? आपका बोलना ठीक है, पढ़ाया इवन एनी सब्जेक्ट which is has got a scientific background, science always progresses, ठीक है। अब मैं भी इंजीनियरिंग करके 14 साल पहले आया, तो वो आज एप्लीकेबल नहीं होगा, मे बी फ्यू थिंग्स हैव चेंज। तो मेरा कहना ये, हम तो सीख जाते हैं, एक इंजीनियर जो है वो जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेशन है, वी लर्न दैट, वी रीड लर्न एंड अडॉप्ट। वाई इज इट दैट डिस्पाइट, अब ऐसा तो है नहीं कि एक अनूप सिंह अकेले लो कार्ब पे जो है ये शोन वंडर ऑल ओवर वर्ल्ड, डायबिटीज रेमिशन, टाइप 2 डायबिटीज रेमिशन और लो कार्ब के अलग अलग शेड हैं, कोई कीटो पे है, कोई कार्निवोर पे है।
Why is it that despite seeing the results, there is so much of pushback कि वो लोग अपने ईगो पे लेके and they start calling people like us, यस। ठीक है, quacks. राइट। वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनका जो अपना एक ईगो है ना, और वो हर्ट होता है, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। मेडिकल डॉक्टर्स जो होते हैं ना, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, और वो खुश नहीं है अपनी लाइफ से, अपने करियर से। मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि इनका जो जॉब है एक तो बहुत हेक्टिक होता है, और पेशेंट को जिस तरह से, क्योंकि आप इन जनरल देखोगे डॉक्टर्स जिस तरह से पेशेंट से बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, उसमें समझ में आता है उनका फ्रस्ट्रेशन। उनके पास इतना पेशेंस नहीं है कि आप 1 मिनट 2 मिनट भी आप पेशेंट को समझा दो अच्छे से कि क्या है नहीं है। वो बात नहीं करते यूजुअली पेशेंट से। तो वो फ्रस्ट्रेशन दिखता है। इन जनरल वो डिप्रेस्ड हैं बेसिकली, उनका मेंटल हेल्थ सही डायरेक्शन में नहीं है, और जिसकी वजह से वो इस तरह से बैशिंग करते हैं सोशल मीडिया पे हम जैसे लोगों की, जो एक्चुअली प्रोडक्टिव रिजल्ट दे रहा है इन टर्म्स ऑफ डिजीज आउटकम। Yes. तो ये फ्रस्ट्रेशन दिखता है, वो फ्रस्ट्रेशन है, उसको इग्नोर करना चाहिए। अगर वो बैशिंग कर भी रहे हैं तो हमारे लिए भी पब्लिसिटी स्टंट वही है, हम भी उसको यूज करेंगे, हम भी उसी को इनकैश करेंगे। करो आकर के, क्या फर्क पड़ता है? आप जितना करोगे मेरा एंगेजमेंट होगा, पीपल Mm. विल गेट हुक्ड ऑन टू माई कॉन्टेंट्स ओनली। सो क्या फर्क पड़ता है? मैं तो एक्चुअली खुश होता हूँ, और बहुत अच्छे से सोता हूँ फिर रात में, खाते पीते। तो या ये बेसिकली हम जो काम कर रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं हमें थिक स्किन्ड भी होना पड़ेगा। Mm. तो इतना ज्यादा हम इमोशनली अगर हर्ट होते रहे हर एक के कमेंट से, तो मुश्किल है इस काम को करना, आगे बढ़ाना। Mm. So people want you to be nice to such people, which, technically I don't believe in, because we are showing results and these are the testimonials of the clients. So I don't think we need to be, see, the entire premise of people like you and Anup is built on anti-establishment. There is a एग्जैक्टली। system that is not working, राइट। and you are part of that system, and you are coming and calling others who are showing results quacks. राइट। So, जैसे like you, I mean, I'm sure you are from the same belief system because I've seen you on the social media, and right now you affirmed that there is no need to be extra nice to such people. You talk on facts. You either talk or you don't talk. यस, यस, राइट, राइट, राइटली सेड। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर डॉक्टर्स का जॉब सिर्फ अच्छे से बात करना नहीं होता, डॉक्टर्स का जॉब होता है पेशेंट को क्योर करना, उसकी लाइफ को, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करना, ये भी जॉब होता है। तो जब मैं सोशल मीडिया पर इस तरह से मिस बिहेव कह लो, आप जो भी कह लो, करता हूँ, तो लोग बोलते हैं यू डोंट नो हाउ टू बिहेव एज अ डॉक्टर। Hmm. तो The same things they tell Anup as well. तो मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम जस्ट अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। द टाइम यू विल पे मी, आई विल बिकम योर डॉक्टर, दैट्स इट। Yes, I think that's a fantastic line. तो So यही मैं people मानता come, हूँ। yeah. I think I've had, experience like, I mean, every post that I do, whether it's feedback or a progress, and people will come and tell me to be, you should be nice. But I think when people come and, despite the results that you're giving, when they come and troll you, you're यस, not paid to be extra nice to people who are not so nice to you. एग्जैक्टली। So either you don't come on my timeline or accept the results that the testimonial is showing you, or the client is showing you, or the patient is showing you. Anyways, we move on to the next question. Anup, any questions from you? yeah, now let's come to some serious questions. एक saturated fat. Again, there are a number of studies. Talk of saturated fat and insulin level, fasting insulin, PP insulin. तो ये PP insulin and fasting insulin again is never ever written down on prescription to get it tested, because वो सबको अभी पता है कि fat metabolism will depend on what your insulin levels are. दिस इज बेसिक साइंस, वो उसमें राइट। कोई MBBS की डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज तक, आई वुड से 99 आउट ऑफ 100 डॉक्टर्स विल नेवर एवर recommend फास्टिंग इंसुलिन एंड PP इंसुलिन। किसी ने कर भी दिया तो फिर वो बोलते हैं 25 के अंदर तक ठीक है, whereas results on the ground as per studies are not राइट। so. राइट। तो ये इसका जो ये ना, क्या बोलते हैं, बेसिकली डू यू थिंक दिस फास्टिंग इंसुलिन लिमिट has been purposely kept wide so that the system can attack saturated fat? हाँ, एक पर्पस भी मैं समझता हूँ तो डेफिनेटली दिखता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि जो रेंज आता है ना किसी भी नंबर का, ब्लड पैरामीटर्स का,
वो रेंज एक्चुअली एक एवरेज पॉपुलेशन के नंबर के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश होता है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ 95% of the population you have, and we have most of the means 95% of the population are actually metabolically unhealthy. Yes. So what happens is their fasting insulin are through the roof. Hmm. अब उस चक्कर में क्या होता है, क्योंकि 100 में से 90 लोगों का 20s में है, 30s में है, तो आप एवरेज जब निकालोगे तो एक लोअर लिमिट एंड एक अपर लिमिट एस्टैब्लिश होता है, और जब भी वो एस्टैब्लिश होगा तो वो एक ब्रॉडर रेंज बन जाता है हमारा। ये ये लफड़ा है रेफरेंस रेंज का, जो एक्चुअली बहुत साइंटिफिक भी नहीं है, क्योंकि हम जिस पॉपुलेशन को रेफर कर रहे हैं वो पॉपुलेशन सिक है, उससे तो कंपेयर ही नहीं करना होता है हमें। हमें अपने इंडिविजुअल हेल्थ को देखना है, या फिर उसको देखो जो एक्चुअली हेल्दी है, जैसे हमारे जैसे लोग, आप उससे कंपेयर करोगे ना। आप अगर 95% मींस एवरेज पॉपुलेशन को आप देख करके आप अपने नंबर्स को अगर जज करोगे तो आपको एक रॉन्ग पिक्चर मिलेगा। तो इसलिए दो कारण है, एक तो डेफिनेटली एक रेफरेंस रेंज, ऑटोमेटिकली हर चीज में ये रेफरेंस रेंज का एक ये लिमिटेशन है, ये प्रॉब्लम है, फैलेसी है रेफरेंस रेंज के साथ, और ये सारे पैरामीटर्स के साथ ये रेफरेंस रेंज का ये इशू डेवलप आता है एक्चुअली, क्योंकि ये एवरेज पॉपुलेशन का एक रिजल्ट है, और एवरेज पॉपुलेशन सिक है तो हमें एक पिक्चर मिलता है कि हमें इसी रेंज में होना चाहिए। एक ग्लूकोज का ही एक रेंज है जो मैं मानता हूँ कि जो लेजिट है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स का थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है, और हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअली क्या हेल्दी है क्या नहीं है। You made a very valid point. When 80% of the population is sick and you are sampling from that population, how can the, lab ranges, एग्जैक्टली including those sick population, be called as great or good? Now, अगला जो है, जो सबसे controversial, टॉपिक है, ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो किडनी डैमेज होगी, मीट खाओगे तो किडनी बैठ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट दे विलिफाइड सैचुरेटेड फैट, देन दे अटैक प्रोटीन, so that कार्बोहाइड्रेट ऑटोमेटिकली सेल्स विदाउट एनी साइंस। तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है कि आप प्रोटीन खाओगे तो किडनी बैठ जाएगी? मुझे ऐसा लगता है एनीथिंग दैट कम्स इन द वे ऑफ सेलिंग मेडिकेशन और मेन स्ट्रीम मेडिसिन बिकम्स बैड फॉर सम रीजन। Hmm. तो प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि ये सारे जो हम डाइटरी स्ट्रेटेजी को लेकर के डाइट से हम डिजीज को रिवर्स कर पा रहे हैं, वो एक्चुअली अगेंस्ट है मेन स्ट्रीम मेडिसिन के। रिजल्ट हमें इससे आ रहा है और मेन स्ट्रीम मेडिसिन जस्ट अपोजिट बोल रहा है करने को, तो इसलिए विलिफाई किया जाता है, बहुत सिंपल रीजन है। और जहां तक प्रोटीन की बात है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई अपर लिमिट नहीं है प्रोटीन का, कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जहां पे हम कह सकते हैं कि आप इस लेवल ऑफ ग्राम ऑफ पर केजी बॉडी वेट अगर आप प्रोटीन लोगे तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। और कुछ रिसर्च है भी जो 5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट तक भी कोई इशू नहीं होता है, अगर आपका एनफ फैट है साथ में तो। और एथलीट लोग लेते हैं 4 to 5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट उतने प्रोटीन को, और फिर लोग बोलते हैं फ्रॉदी यूरिन होता है। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि फ्रॉदी यूरिन कोई पैथोलॉजी थोड़ी ना है। अगर फ्रॉदी यूरिन हो रहा है तो आपको देखिए, एक होता है ना मेडिकल साइंस में, एक होता है साइन और एक होता है वन ऑफ द साइंस। तो फ्रॉदी यूरिन वन ऑफ द साइंस है, ओनली साइन नहीं है किडनी डिजीज का। अगर ओनली साइन होता देन फ्रॉदी यूरिन से हम डायरेक्टली बोल देते कि भाई किडनी डिजीज हो गया, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टूल की तरह हो गया हमारे लिए। पर ऐसा होता नहीं है, न्यूआंसेस बहुत हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं, आपको सबको ध्यान में रखते हुए कुछ भी इंटरप्रेट करना होता है। तो जस्ट बिकॉज यू हैव फ्रॉदी यूरिन इट डजंट मीन यू हैव सम रीनल डिजीज और किडनी डिजीज। तो प्रोटीन की जहां तक बात है तो मैं यही कह रहा था कि आप कितने भी अमाउंट में लो, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि लॉजिक से मैं बात करता हूँ हमेशा, मैं बहुत ज्यादा डीप या किताबी कीड़ा टाइप से मैंने कभी पढ़ाई ही नहीं किया एक्चुअली। अगर पढ़ रहा होता तो शायद ये काम नहीं कर रहा होता, गोल्ड मेडल लेकर के मेडिसिन लिख रहा होता। क्योंकि दिमाग बंद हो जाता है जब आप, जैसे ही आपके पास गोल्ड मेडल आता है किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो फिर आपका दिमाग क्लोज हो जाता है। और प्रॉब्लम यही है। तो अब ये था कि मैं बहुत ओपन था शुरू से, मैं क्योंकि अपने हेल्थ को लेकर के इतना ज्यादा कॉन्शियस रहा हूँ शुरू से, तो मैं हर चीज के लिए ओपन रहता हूँ कि अगर मैं आज ये खा रहा हूँ तो कल ये भी कर सकता हूँ, कल वो भी कर सकता हूँ, कल इस चीज को छोड़ भी सकता हूँ। मेरे साथ ये है, मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ इस मामले में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम प्रोटीन को बढ़ा करके किडनी डिजीज को रिवर्स कर रहे हैं, साथ में कार्ब्स को भी कम कर रहे हैं, वो भी एक क्रूशियल फैक्टर है हमारे लिए, उसको भी कम करना। तो अब हम ये बोलते हैं कि स्टेज 4 में अगर होगा तो हम नहीं देंगे, स्टेज 5 में होगा तो हम हाई प्रोटीन नहीं देंगे।
मेरा ऐसा मानना है कि अगर स्टेज 4 स्टेज 5 में पेशेंट है क्रॉनिक किडनी डिजीज का, देन डेफिनेटली दैट पेशेंट मस्ट बी ऑन डायलिसिस, वो तो होगा। तो जब डायलिसिस से आप उसके वेस्ट को बाहर निकाल ही रहे हो, देन प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन से जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में आता है, यूरिया या फिर जो भी है, उसको आप बेसिकली बोलते हो कि ये टॉक्सिक है। हालांकि यूरिया टॉक्सिक होता नहीं है, अमोनिया टॉक्सिक होता है। ये बहुत ही गलत फहमी है लोगों में, डॉक्टर्स में। तो अब क्या हो रहा है कि यूरिया बढ़ जा रहा है, लेकिन आपका वेस्ट तो एवरी अदर डे रिमूव हो जा रहा है। तो अगर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है और आप उसको प्रोटीन दे रहे हो, देन मैं मान सकता हूं कि प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन सारे डायलिसिस के पेशेंट, जो भी क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट जो डायलिसिस पे हैं, स्टेज 4 स्टेज 5 किडनी डिजीज के, वो सारे डायलिसिस पे होते हैं। और जब डायलिसिस पे होते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी वीकली थ्राइस होती है डायलिसिस की। तो उस सिचुएशन में अगर आप प्रोटीन को लेकर के इतना ये रहोगे, डायलेमा में रहोगे कि मैं 1.5 से ऊपर नहीं जाऊंगा या 0.8 दूंगा, 1 ग्राम दूंगा, क्योंकि गाइडलाइन तो हमें 0.8 1 खाने को कह रहा है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि आपका पेशेंट बेटर नहीं हो पाएगा उस लास्ट स्टेज में। एटलीस्ट उसको एज अ लास्ट रिजॉर्ट ऑफ यूज करो, प्रोटीन को बढ़ाओ। मेरा ये मानना है, हालांकि ये मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहा हूं मैं डेफिनेटली, बट मैं अपने पेशेंट के साथ कुछ ऐसा ही करता हूं, मैं उस चीज को बता रहा हूं बस। तो आप अगर प्रोटीन दोगे भी तो क्योंकि दैट पेशेंट इज ऑन डायलिसिस, दैट वेस्ट इज नॉट गोइंग टू कॉज हिम एनी काइंड ऑफ ट्रबल। अब एक यूरिया और अमोनिया की मैं बात कर देता हूँ। बॉडी हमारा जो लिवर में जो अमोनिया प्रोटीन से आ रहा होता है, उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है लिवर, यूरिया साइकिल के थ्रू। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट का किडनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, लिवर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो जैसे ही आपका अमोनिया, क्योंकि इतना टॉक्सिक है हमारे ब्रेन के लिए, इन जनरल हमारी बॉडी के लिए, उसको बॉडी तुरंत यूरिया में कन्वर्ट कर लेता है। हम अमोनिया से एक्सपोज नहीं होते कभी भी हाई प्रोटीन डाइट पे। यूरिया हमारे लेवल बॉडी में ब्लड में बढ़ता है। तो जैसे ही यूरिया बढ़ता है तो वो न्यूट्रल होता है, वो नॉन टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए। तो अगर वो बढ़ भी रहा है तो वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर अगर कोई पेशेंट अगर उस समय उस सिचुएशन में अगर कुछ सिम्टम्स के साथ आ रहा है क्रॉनिक किडनी डिजीज का और यूरिया बढ़ा हुआ है, तो बहुत लोग बोलते हैं अरे यूरिया बढ़ा हुआ है, यूरिया से सिम्टम्स आ रहा है। नहीं, वो एक एसोसिएशन है। यूरिया इज नो वेयर कॉजिंग हिम एनी ट्रबल, मैं यही बता रहा हूँ। वो एक एसोसिएशन, ऐसे ऐसे एसोसिएशन बहुत सारे हैं। तो अब सब कुछ को कॉज अगर मानने लगे में हम, तब तो पेशेंट तो ऐसे ही पड़ा रहेगा डायलिसिस पे ही। तो क्योंकि बॉडी इतना ज्यादा होम्योस्टैटिकली, इतना ज्यादा बढ़िया वेल रेगुलेटेड सिस्टम है हमारा, कि वो टॉक्सिक चीजों को बॉडी में वो तुरंत न्यूट्रलाइज कर देता है, कन्वर्ट करके यूरिया में। तो हाई प्रोटीन है, मेरा यूरिया हमेशा 50-60s में होता है, जो नॉर्मल रेंज से कई मतलब ऊपर है। हमेशा ही मेरा यूरिया हमेशा बढ़ा रहता है। तो क्या हो जा रहा है उससे? तो यूरिया प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर पेशेंट का पोटेशियम बढ़ने लगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मार्कर्स को आपको समझना है, अगर पोटेशियम बढ़ने लगे देन कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट जाता है, किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से। वो प्रॉब्लम है पोटेशियम, यूरिया नहीं है प्रॉब्लम। यूरेमिक एनकेफेलोपैथी एक मेडिकल टर्म होता है, जहां पे हम बोलते हैं यूरिया बढ़ रहा है तो एनकेफेलोपैथी, ब्रेन फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अरे भाई, यूरिया तो ब्रेन में जाता ही नहीं है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं करता यूरिया। तो यूरेमिक एनकेफेलोपैथी, ऐसे ऐसे मिसनोमर बहुत है हमारे मेडिकल सब्जेक्ट में, जो भी लिटरेचर हम पढ़ते हैं। तो एक्चुअली वो आई थिंक अमोनियाकल, वो आई थिंक सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई थिंक वो इडियोपैथिक से रिलेटेड तो नहीं है? नहीं नहीं, इडियोपैथिक नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी हमारा पेशेंट एनकेफेलोपैथी में होता है, मतलब ब्रेन का एक्चुअली फंक्शन कुछ ऐसा होता है कि पेशेंट साइकोटिक हो सकता है उस समय, और कुछ भी मिसबिहेव कर सकता है, मतलब बहुत ज्यादा वो एंग्शियस होता है उस दौरान। और उसमें क्या होता है कि जनरली क्योंकि किडनी का पेशेंट है तो डेफिनेटली यूरिया बढ़ा रहेगा। तो अब वो सारे सिम्टम्स जो है ना उसके साथ एसोसिएटेड, हाई यूरिया के साथ, लोग बोलते हैं कि यूरेमिक एनकेफेलोपैथी हो गया। नहीं, यूरिया से नहीं हो रहा है वो एक अमोनियाकल जो भी थोड़ा सा नाइट्रोजनस वेस्ट है उसकी वजह से थोड़ा बहुत वो प्रॉब्लम होता है। और क्योंकि इन जनरल उसकी बॉडी मेटाबॉलिक लेवल पे इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है, उससे वो उसका सिम्टम आ रहा है, मेंटल सिम्टम्स। उसको यूरिया से कोई लेना देना नहीं है एक्चुअली। यूरिया, हाई यूरिया एक किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज का एक मार्कर है, और वो बस कॉन्फाइंड हो जाना चाहिए वहीं तक। उसको कोई मतलब नहीं है मेंटल हेल्थ से और मेंटल मैल फंक्शन से, ब्रेन मैल फंक्शन से। ये बहुत गलत नोशन है एक्चुअली। ऐसे ऐसे मिसनोमर मुझे लगता है कि बहुत सारे हैं मेडिकल टर्म में। तो एक्चुअली हम्म। वो एनकेफेलोपैथी कुछ और ही है, वो यूरेमिक नहीं है, क्योंकि वो एसोसिएटेड है एनकेफेलोपैथी से, हाई यूरिया। तो हम उसका नाम एक दे दिए हैं यूरेमिक एनकेफेलोपैथी, क्योंकि एक
नाम नॉमेनक्लेचर तो हमें देना पड़ेगा ना किसी चीज को समझने के लिए. Mhm. दैट्स इट. So I'll come to the next question. I think we'll need to hurry up so that we can cover more. किशले ये बताइए कि डायबिटीज को क्या हम रिवर्स कर सकते हैं या रिमिशन में डाल सकते हैं थ्रू लो कार्ब और थ्रू कार्निवोर? दैट इज वन क्वेश्चन. और दूसरा क्वेश्चन है उसी का एक्सटेंशन कि क्या लोगों को डाइटरी गाइडलाइंस जो एसोसिएशंस देती है, मिलेट्स खाइए, मिलेट्स आर हेल्दी, 5 फ्रूट्स अ डे, फ्रेश वेजिटेबल्स, तो ये सब जो डाइटरी एडवाइस होती है जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं, तो कहाँ तक उसको ट्रस्ट कर सकते हैं, कितने डिपेंडेबल है वो? आजकल जो भी हमारे पास डिजीज है, लाइक डायबिटीज, ओबेसिटी, फैटी लिवर, इवन कैंसर. कैंसर इज ऑल्सो ऑन द राइज. तो ये किस डाइट को फॉलो करने से आ रहा है ये सारा डिजीज? डाइटरी गाइडलाइन वाले डाइट से, जहाँ पे हमारा 70% कार्बोहाइड्रेट है और 15% अराउंड फैट है और 15% प्रोटीन है, इवन बिलो देन 15%. तो अब वहां पे कोई भी जनरल पब्लिक के अंदर एक पता नहीं, एक नहीं आता कभी भी वो थॉट कि शायद ये बीमारी जो है हमारी शायद डाइट से ही आ रही है, क्योंकि हम इसी को खा रहे हैं और सारे लोग बीमार हैं. वो ऐसा सोचते नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली ये क्या है ना, न्यूट्रिशन साइंस अब एक थियोलॉजी का पार्ट बन गया है, आइडियोलॉजी का. ये साइंस है ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट तो हम कंडक्ट करते नहीं है न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग. एक ट्रायल एक निकाल देते हैं ऐसे ही 2 हफ्ते का 3 हफ्ते का फालतू का, और वो भी एक एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी होता है, एसोसिएटिव स्टडी होता है. कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है, कोई किसी को नहीं देख रहा कि कौन क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है, कौन कितना सो रहा है. बैड हैबिट्स भी साथ में एसोसिएटेड होता है सभी के. और अपने अकॉर्डिंग प्रॉब्लम क्या है ना, ये जितने भी ट्रायल्स है ना, ये हाइपोथेसिस को ये लोग खुद ही जनरेट करते हैं अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, अपने गोल के अकॉर्डिंग, और उस हाइपोथेसिस को ये लोग गलत होते हुए भी प्रूव कर देते हैं. रिजेक्ट करने का इंटेंशन नहीं है इनका कभी भी. अगर हम्म. रिजेक्ट कर देंगे तब तो भाई उनका साइंटिफिक वो जो ट्रायल है, जो क्लिनिकल ट्रायल है, वो तो गलत हो गया. तो इनको अपने हाइपोथेसिस को करेक्ट प्रूव करना है समहाउ, और वो सक्सेसफुल होते हैं उसमें, क्योंकि फंडिंग जो है हमारे वो वहीं से आ रही होती है, जिस चीज को हम खा रहे हैं उसी इंडस्ट्री से आ रही होती है. तो उसमें बहुत सक्सेसफुल है. और वो एक नोशन बन गया कि भाई कार्ब्स है, ये तो बचपन से हम खाते आ रहे हैं, दादा नानी खाते आ रहे हैं, नानी दादा जो भी, चाचा चाची सब कोई. अब उसको खाते हुए कोई तो बीमार नहीं पड़ा. तो हम अगर बीमार पड़ रहे हैं तो इसका मतलब डाइट नहीं है, कुछ और है. शायद एक्सरसाइज नहीं कर रहे. 50 तरीके की बातें आती हैं उसमें. तो यही प्रॉब्लम है. लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है कि हमारे डाइट में और उनके डाइट में बहुत बहुत डिफरेंस था. उनके पास फिजिकल एक्टिविटी थी, तो बहुत सारा कंफाउंडिंग फैक्टर्स हैं, उस चीज को ध्यान में नहीं रखते ये लोग. तो बेसिकली हमारे पास जो भी डिजीज है वो इस डाइटरी गाइडलाइन से आ रहा है, तो हमें डाइटरी गाइडलाइन को कंप्लीटली इग्नोर करना चाहिए और वो फॉलो करना चाहिए जिससे रिजल्ट आ रहा है. सिंपल सी बात है. अनूप, नेक्स्ट क्वेश्चन. या ये सबसे बड़ा आजकल जो है ना, मिलेट्स खाइए. सो व्हाट इज योर एडवाइस ऑन मिलेट्स फॉर डायबिटिक्स? बिकॉज हम लोग क्या है ना कि एक अंधभक्त की तरह सब सुन के, और देन सिंस इट सूट्स आवर एजेंडा और टेस्ट, वी ब्लाइंडली फॉलो इट. बट टेक्निकली एंड साइंटिफिकली ये मिलेट्स फॉर डायबिटिक्स, इन माय ओपिनियन, इट इज एज बैड एज wheat or any other grain. So why is this being pushed now? देखिए इसका रीजन जो है ना एक्चुअली वो क्या है कि पहली बात तो इस तरह के क्वेश्चंस ये लोग पूछते हैं कि आर मिलेट्स हेल्दियर देन वीट. तो मैं ऐसा बोलता हूँ ये क्वेश्चन ही गलत है एक्चुअली. क्वेश्चन होना चाहिए विच इज मोर टॉक्सिक, विच इज लेस टॉक्सिक. प्लांट बेस्ड फूड्स आर नॉट हेल्दी. चाहे आप कोई भी प्लांट ले लो, कोई लेस टॉक्सिक है, दैट्स व्हाई यू कैन कंज्यूम इट विदाउट बीइंग सफर्ड. और कुछ इतने टॉक्सिक है कि आप उसको खा नहीं सकते हो, वो इंस्टेंटली आपको ट्रबल करेगा. एनिमल बेस्ड कल फूड के यही साथ बात क्या है. डॉक्टर एंथनी चेफी ने यही बात की थी, हमारा कल सेशन था. सो आई वुड वांट पीपल टू लिसन केयरफुली. कृष्ण, प्लीज कंटिन्यू, सॉरी टू यस. इंटरप्ट यू. या तो आपको ये समझना होगा कि हेल्थ प्रोमोटिंग फूड क्या है और हेल्थ डिस्ट्रॉइंग फूड क्या है. तो हेल्थ प्रोमोटिंग फूड विल ऑलवेज बी एनिमल बेस्ड फूड. अब हेल्थ डिस्ट्रॉइंग फूड हमें पता है, हमें नहीं पता है ना, हम मानते हैं, लेकिन है प्लांट्स. तो अब आपको उसको ध्यान में रखते हुए उसके अमाउंट को कम करना होगा. आप उसको बेस नहीं बना सकते अपनी डाइट का, इंक्लूडिंग सीरियल्स, ग्रेन्स, लेग्यूम्स एंड लेंटिल्स एंड फलाना ढिकाना, जितना 50 तरीके का चीज उसमें आता है. तो अब आप उसको जब बेस नहीं बनाओगे तो क्या होगा, जो टॉक्सिक चीजें अपने आप कम हो गई. तो अब उसमें आपको ये
करने की जरूरत ही नहीं है, रूल आउट करने की जरूरत नहीं है कि विच इज मोर टॉक्सिक लेस टॉक्सिक, क्योंकि आप इन जनरल इतना कम आप खा रहे हो कि अपने आप आपका मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। क्योंकि बैड तो स्मोकिंग भी अल्कोहल भी है, तो आप उसको डेली करते हो तो नुकसान तो पहुंचता है ना। उसका इफेक्ट थोड़ा सा ऑब्वियस होता है, थोड़ी जल्दी होता है, बट मे बी वेजिटेबल्स का भी, सीरे प्लांट बेस्ड फूड का भी वैसे ही कुछ है हालत। ऐसे भी आपको तो आज आप इंडिया सिगरेट में पी रहे हो। 40% वेजिटेरियंस है किशले, ऐसा मानते हैं। हम्म, तो इवन नॉन वेजिटेरियंस भी जो है वो ज्यादातर वेजिटेरियन डाइट ही लेते हैं, वीक में दो exactly. चार पीस मीट खा लिया। तो उनको क्या करना चाहिए? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर देम? जब भी मैं बोलता हूँ ना कि एक्चुअली कि नॉन वेज फूड्स आर हेल्दी, एनिमल बेस्ड फूड्स आर हेल्दी, तो लोग बोलते हैं कि यार नॉन वेजिटेरियन फूड वाले भी तो बीमार हैं ही ना। तो मैं बोला नॉन वेज फूड खाना और मीट हम्म। बेस्ड डाइट को फॉलो करना, दोनों में फर्क होता है। हाँ। नॉन वेज फूड, योर सो कॉल्ड नॉन वेज बेस्ड फूड इज नॉट मीट बेस्ड फूड मील यस। एक्चुअली। तो मीट बेस्ड का मतलब है कि आपका मोस्ट ऑफ द एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स वहीं से कवर अप हो जा रहा है। तो अदर जो चीजें हैं ना वो ऑप्शनल हो जाती हैं फिर आपके लिए। हम्म। आप लो तो सही है, नहीं भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो डिपेंड करता है, आपके पास हंगर सेटाइटी है, वो उस चीज को, मीट को दोबारा खाने का मन नहीं है, तो आपने ट्रीट की तरह आप किसी वेजिटेबल्स सूप को ले लिया या फिर जो भी है सैलेड को ले लिया, तो वो प्रॉब्लम है। तो आपका नॉन वेज बेस्ड फूड जो है वो मीट बेस्ड नहीं है, आपका वो है सेम वेजिटेरियन फूड है जो कि सीरियल बेस्ड है। और 2 पीसेज अब मटन लेके बैठते हो ग्रेवी के साथ, बढ़िया से लपेट के खाते हो एक थाली, और चावल के साथ। हाँ चावल के साथ। उसके बाद जब गैस होता है, एसिडिटी होती है, तो आप बोलते हो कि मटन बहुत हेवी होता है। भाई डाइजेस्ट नहीं होता है, कम से कम खाना चाहिए। अब तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, GERD हो गया हमें, तो अब तो मटन बंद है। अब हम वेजिटेरियन हो जाते हैं, मैक्सिमम लोग तो वेजिटेरियन है ही खाते हुए भी। उसके बाद फिर वीगन की तरफ भी चले जाते हैं, उनको लगता है वही सोल्यूशन है हम्म। हमारा। तो हम्म। उस एक्स, उस इस, जब एक्सट्रीम पे जाते हैं तो फिर पता लग जाता है उनको भी, 1-2 सालों में फिर पता लगता है उनको ये क्या हो गया। और वो कैसे दिखते हैं जनरली वेजिटेरियन, मैं तो बहुत ओपनली बोलता हूँ, आप किसी के अपीयरेंस को देखते हुए ही आप जज कर लो कि कौन कितना हेल्दी है। सिंपल सी बात है। मैं बहुत फ्रैंकली बोलता हूँ इसे, मुझे कोई इसमें आई डोंट हैव एनी शेम इन टेलिंग ऑल दिस। मैं बोलता हूँ कि आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हो या किसी को आप फॉलो कर रहे हो, आप उसको देखो। जस्ट बिकॉज he or she has millions of followers, it doesn't mean that he knows everything. He has got everything wrong about nutrition. तो हम लोग जब अच्छे दिखते हैं तो उस पर ध्यान नहीं है ना। प्रॉब्लम क्या है क्योंकि हम वो बोल रहे हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता है, ये इशू है सबसे राइट। बड़ा। तो यहाँ पे लोग हर जगह इमोशनल हो जाते हैं, हर जगह रिलीजियस हो जाते हैं, हर चीज को लेके। न्यूट्रिशन को रिलीजन से क्या मतलब है? किसी को बीमारी अगर ये देख करके होगी कि आप भक्ति कर रहे हो इस भगवान की, तो आपको हम बीमारी नहीं देंगे, या आपको ये बीमारी नहीं होगी, आप रेजिस्टेंट हो गए इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए, तब तो किसी को कोई टेंशन नहीं, मैं भी भक्ति करने लगूंगा, फिर नहीं खाऊंगा। ऐसा हम्म। नहीं होता ना। आप ह्यूमन बॉडी में डिजीज आपको उस तरह से तो होगा नहीं, अरे आप वीगन हो, अच्छा ठीक है आपको मैं ये डिजीज नहीं दूंगा, जो भी है। क्योंकि आप इसी तरह से तो ले रहे हो ना न्यूट्रिशन को, उसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। तो क्या इंडियन वेजिटेरियन डाइट जो टिपिकल है, दो क्वेश्चंस हैं, आई थिंक विल टेक वेरी क्विक आंसर्स। क्या वो बैलेंस डाइट है? दैट इज वन, जो अपनी इंडियन थाली है। सेकंड, क्या इंडियन वेजिटेरियंस को, जो प्राइमरीली ग्रेन्स, लेग्यूम्स और वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, उनको डेफिशिएंसीज होने के चांसेस ज्यादा हैं क्या? राइट। हम जो डाइट यूजुअली लेते हैं ना, वो मेरे हिसाब से, क्योंकि फैट बहुत कम खाने को हमें बोला जाता है, वो एक्चुअली बैलेंस डाइट बोला जाता है, बट वो बैलेंस डाइट की तरह है नहीं, क्योंकि फैट का अमाउंट उतना होता नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अब हम डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखते हैं और बहुत सारे रेसिपीज को ट्राई करते हैं जिसमें ऑयल, एडेड ऑयल आ जाता है, रिफाइंड ऑयल, एक्स्ट्रा फैट आ जाता है। तो क्योंकि हमारा प्रिपरेशन अब कुछ ऐसा हो गया कि फैट का अमाउंट भी बढ़ जाता है कार्ब्स के साथ, तो उस चक्कर में वो बैलेंस डाइट बन जाता है। लेकिन जो बोला जा रहा है वो बहुत ज्यादा उस तरह से नहीं है कि फैट बहुत ज्यादा है उसमें, क्योंकि 10 to 15% मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम। वो वीगन स्पेक्ट्रम में है मेरे हिसाब से, जो बैलेंस डाइट हमें बोला जा रहा है खाने के लिए। लेकिन हम्म। जब हम खाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं टेस्टी बनाने के लिए, डिलिशियस बनाने के लिए हम फैट को ऐड करते हैं, और सभी को पता है कि व्हेन कार्ब्स एंड फैट कम टुगेदर, डेफिनेटली दैट फूड आइटम विल बिकम टेस्टियर। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है ना, हम कहीं ना कहीं उसको बैलेंस बनाते हैं ज्यादा बेटर वे में, और तब खाते हैं, तब होती है बीमारी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है हमारी बॉडी में। और कार्ब्स और फैट का होना बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत प्रॉब्लमेटिक।
ओबेसिटी भी आपका उसी कार्ब्स एंड फैट की वजह से हो रहा है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैंने तो यार दबा के कार्ब्स खाया बट मैं फैट लूज कर गया आराम से। मैं बोला हाँ इसलिए कर गए ना क्योंकि फैट को हटा दिया ना तुम एंटायरली। हम्म, बट इससे तुम एक थ्योरी नहीं तुम बना सकते हो कि भाई फैट नहीं खाना चाहिए ना। तुम्हारे पास रिजल्ट आ गया लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों के पास वो रिजल्ट नहीं आ पाता है फैट को रिमूव कर देने से कार्ब्स खा के। मैक्सिमम लोग मेटाबॉलिकली जो सिक हैं वो जब तक कार्ब्स को नहीं हटाएंगे वो फैट लूज नहीं कर पाते हैं। एक तुम हेल्दी इंडिविजुअल की भले बात कर रहे हो जो ठीक ठाक था मेटाबॉलिकली, हो सकता है वो फैट को रिमूव करके कुछ 5 to 6 kgs को रिड्यूस कर लिया। और डिपेंड करता है एक्चुअली, आप ओबीज हो इसका ये मतलब नहीं आप मेटाबॉलिकली सिक हो गए। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होता है ओबिसिटी का भी। तो सारा कुछ फैक्टर होता है, यू हैव टू टेक दैट फैक्टर इन एक्चुअली, मेनी फैक्टर्स। what are the deficiencies that one sees in people who are largely vegetarian diet, eaters? मैंने एक्चुअली इसका लिस्ट बनाया है और मुझे ऐसा लगता है 20 समथिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक विटामिन ए, डी, विटामिन B2, B6 ऑल्सो, विटामिन K2 और कोलिन एंड क्रिएटिन, कार्नोसिन, एंसेरिन, आयोडीन, जिंक, omega-3 फैट्स लाइक EPA एंड DHA, कोलाजन और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोटीन एंड सैचुरेटेड फैट डेफिशिएंसी। So ये सारे मतलब सारे वेजिटेरियंस में ये स्टैंडर्ड तरीके से पाया जाता है ज्यादातर, या कैसे? मोस्ट ऑफ द वेजिटेरियंस में पाया जाता है बट क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि सिम्टम्स इतने ज्यादा सब क्लिनिकल वे में होते हैं ना तो आप उसको मैनिफेस्ट नहीं करते। जैसे क्या होता है विटामिन B1 की डिफिशिएंसी से हमारे पास बेरी बेरी होता है, जो 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 फ्रैंक एक डिजीज है जहाँ पे हमारा क्लिनिकल सिम्टम्स इतना ओवर्ट होगा कि यू कैन जस्ट सी द सिम्टम्स एंड यू कैन डायग्नोज दैट क्लिनिकली। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो मैनिफेस्टेशन है, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, अनएक्सप्लेन्ड वे में प्रेजेंट करते हैं पेशेंट, वो एग्जैक्टली उस तरह से सब क्लिनिकल वे में प्रेजेंटेशन नहीं होता। सब क्लिनिकल डिजीज बोलते हैं उसको। जैसे डिप्रेशन भी, मैक्सिमम लोग डिप्रेस्ड है लेकिन हम उसको क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं बोलते, क्योंकि क्लिनिकल डिप्रेशन में क्या होता है पेशेंट आइसोलेट कर लेता है खुद को, किसी से बात नहीं करता, सोशली इंटरेक्ट नहीं करता। लेकिन सब क्लिनिकल डिप्रेशन तो सभी को है। आप अगर किसी को बैश कर रहे हैं इस तरह से जो अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, आप उसको आकर के इस तरह से बरस रहे हो, तो वो एक सब क्लिनिकल डिप्रेशन ही तो है, फ्रस्ट्रेशन है अपना ना वो। तो उस तरह से डिजीज में डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन में भी वही हालत है। आप अगर ऐसा अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम लेकर के आते हो जो एक्चुअली किसी डेफिशिएंसी को प्रेजेंट वो एक्चुअली मिमिक नहीं कर रहा होता, टिपिकल जो हम कन्वेंशनल वे में पढ़ते हैं, लेकिन वो एक्चुअली होती है उसी की डिफिशियंसी। बेरी बेरी तो नहीं होगा ना आपको, उस तरह से माल नॉरिश तो आप हो नहीं। जिस तरह से हमारे पास जो बेगस होते हैं रोड साइड, जिनके पास कुछ भी नहीं है खाने को, और उनके पास उस तरह के फ्रैंक सिम्टम्स के साथ वो बेरी बेरी लेकर के आएंगे। हमें उस तरह से नहीं होगा क्योंकि हमारी डेफिशिएंसी सब क्लिनिकल मैनर में हम्म। बट है। Anup, you want to ask the next Yeah, question? before we end, Dr. Kishle, one of the most, I would say, unique success stories of your client on your diet? I think I will, in the end, I will, one line answers I will ask you so that people can benefit from this session more. So Yes. why don't you go ahead and answer Anup first, and then probably we'll conclude with that. राइट। दो स्पेशल केसेस में, एक 2 CKD पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपने क्रॉनिक किडनी डिजीज को रिवर्स किया। वन ऑफ देम वाज डायबिटिक एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन और वन ऑफ देम वाज एक्चुअली पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट। तो बेसिकली शी हैड ग्राफ्टेड किडनी, तो ट्रांसप्लांटेड किडनी था वो डैमेज होने लगा फर्दर दोबारा ट्रांसप्लांट के बाद। तो बिकॉज शी वॉज ऑन हाई डोज ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट एंड स्टीरोइड, शी बिकेम डायबिटिक। और नेफ्रोलॉजिस्ट ने कभी नहीं ब्लड शुगर ये सब टेस्ट कराया उसका कि भाई चलो आई हैव पुट माय पेशेंट ऑन स्टीरोइड, देन लेट्स चेक हर ब्लड शुगर प्रोफाइल। कभी नहीं। अब डायबिटीज हो गया 8 पॉइंट समथिंग, HbA1c हो गया। देन एक्चुअली उसकी जो सिस्टर मेरी कलीग रही है और शी इज ऑल्सो अ डॉक्टर ऑफ गाइनिक, उसने बोला कि किशले अब तुम ही हैंडल करो, मुझे नहीं लगता अब ये किसी डॉक्टर से ठीक होने वाली है। वेजाइनल ब्लीड हो रहा था, एनल ब्लीड हो रहा था, बहुत सीरियस कंडीशन था डाइजेस्टिव इश्यूज से। मैं बोला कि मैंने बोला कि एक काम करते हैं, इनका होल प्रोफाइल एक टेस्ट कराते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है इनको। तो जब कराया तो पता चला लिवर एंजाइम वाज समवेयर अराउंड 600-700, AST ALT सब कुछ, मतलब पूरा आउट ऑफ वैक था पूरे। तो मैंने उनको अच्छे से समझाया कॉल पे, बोला कि आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। हालांकि शी वॉज नॉट रेडी टू टेक मीट और अदर नॉन-वेज फूड आइटम्स, बट शी वॉज काइंड ऑफ प्रिपेयर टू टेक एग्स। तो शी स्टार्टेड एग्स। एग्स लेने के बाद उनका जब 2 मंथ्स के बाद
मैंने RFT रिपीट कराया तो 1.8 से सीरम क्रिएटिनिन उनका 1.1 हो गया। और वेजाइनल ब्लीड, एनल ब्लीड, मैंने उसके लिए पर्सनली इंडिविजुअली कुछ नहीं किया, बस मैंने डाइट फिक्स की उनकी और अपने आप सारे सिम्टम्स चले गए उनके। और आज उस दिन से आज तक अपने नेफ्रोलॉजिस्ट का चेहरा उन्होंने नहीं देखा, बस मेरा ही चेहरा देख रही है वो तब से। देखने लायक भी है। Kishle, one line answer. So people have asked me to ask you this. जितना short में हो सके, how healthy are fruits? Fruits definitely, as it is plant product, so definitely is not healthy. It is actually, it should be taken in the form of treat basically. और कुछ फूड आइटम्स को ना मैं बोलता हूँ डेली नहीं खाना है, जैसे फ्रूट्स हो गया उनमें से एक, नट्स एंड सीड्स, एंड डेफिनेटली सीरियल्स एंड ग्रेन्स। बेसिकली सभी कुछ हट गया, आपका प्लांट बेस्ड फूड डेली नहीं खाना होता है। अब क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि नट्स एंड सीड्स के साथ, क्योंकि कार्ब्स एंड फैट दोनों होता है नट्स एंड सीड्स में इन जनरल, इसलिए फैटनिंग है वो। फ्रक्टोज होता है फ्रूट्स में तो वो फैटनिंग है वो भी। अब जितने भी ये फैट कराने वाले, फैट जो बढ़ाने वाले फूड हैं, उनको हम डेली खाते हैं, तो इसलिए सभी के पास सेंट्रल ओबेसिटी होता है, एक जो हम बोलते हैं कि सार्कोपेनिक ओबेसिटी और डैड बॉड वाला एक पिक्चर होता है सभी के पास। 23-30 हुए नहीं कि लेकर के अंकल जैसे हो गए दिखने में, और फिर बोलते हैं कि शादी हो गई है इसीलिए वैसा हो गया। जिनकी शादी नहीं हुई अब तो वो भी वैसे ही हो गए हैं ना। ये वैसे ही हो गया जैसे मीट को ब्लेम कर दिया, काम Exactly. कुछ, हाँ, तो तो मतलब बदमाशी किसी और ने की बट ब्लेम कर दिया मीट। राइट। तो कृष्णा, फ्रूट्स रोज खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? लाइक बिल्कुल some people have 3-4 portions of fruit. Some people even have it in the morning. Some people have it after lunch. Yes. तो फ्रूट्स रोज खा रहे हैं, और रोज तो खा रहे हैं वो चलो 3-4 पोर्शंस ऑफ फ्रूट्स खा रहे हैं, तो क्या इसका सही तरीका होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे कैवियाट्स हैं और बहुत सारे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ भी करना चाहिए। आप बहुत हेल्दी हो, बहुत अच्छा फिजिकल एक्टिविटी है, तो आप बिफोर वर्कआउट ले सकते हो या पोस्ट वर्कआउट ले सकते हो। प्रॉब्लम क्या है फ्रूट्स के साथ ना, कि आप जब भी फ्रक्टोज को ले रहे हो ना, तो वो ऐसे प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि फ्रक्टोज को जब आप आइसोलेशन में लेते हो तो वो यूटिलाइज होता है एज एनर्जी। लेकिन जब भी वो ग्लूकोज के साथ जाता है, क्योंकि फ्रूट्स में सिर्फ फ्रक्टोज नहीं है, ग्लूकोज भी है, तो ये जो ग्लूकोज फ्रक्टोज साथ में होने की वजह से क्या होता है कि फ्रुक्टोज एंटायरली ये फैट लाइपोजेनेसिस में चला जाता है, पाथवे को फॉलो करता है, क्योंकि बॉडी के लिए प्रेफर्ड फ्यूल हमेशा ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज नहीं है। तो इसलिए आप फ्रक्टोज अलग से नहीं खा रहे हो, आप ग्लूकोज भी अलग से नहीं खा रहे हो। अगर सीरियल्स ले रहे हो देन ग्लूकोज को आप खा रहे हो। तो इसलिए फ्रूट्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज उसका एंटायरली फैट डिनोवो लाइपोजेनेसिस पाथवे में डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज तो आप ले ही रहे हो फ्रूट से, तो वो एनर्जी देगा, बट एनर्जी तो है ही आपके पास, फैट भरा पड़ा है, उसको कब 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 खर्चा करोगे भाई, उसको निकालो, उसको कभी तो निकालो, क्यों इतना खाने का सोच रहे हो? हमारे तो जैसे फ्रूट्स लोग का जो हेल्थ से कोई कनेक्शन है? फ्रूट्स आर हेल्दी, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। So I think Shashi is also here, and we managed to finish on time. But this is not the end, Kishle. You have to come back. I have lots of questions, and as you and I discussed, people want to know and hear from you more. And we promise that we'll do another session with you, busting these myths. Thank you, Anup. Anything you would want to say? Thank you, Dr. Kishle. You have been your original self. Thank you so much. Yes. Yeah, just take me in. Aarti, Yeah. Trusha. Please take Shashin. Dr. Kishle, thank you very much. Thank you, sir. Thank you so Always much. pleasure to have you, and you are a no holes barred. You just open out your heart and say the truth, the basic science. So thank you very much for coming in again. And as Ira says, that we'll have more and more sessions with you. Right. And absolutely very happy to interact with you. Thank you very much. So we can Thank you get so the much. next guest in. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Thank you, Thank you, sir. Kishle. Thank you. Thank you for so much. coming.